Hello everyone, welcome to your Tech Buddy. And today, as promised, is the second show of our Android segment. So guys, before we start, I would like to thank all of you who listened the show on that day or afterward and making it for a good success. And I just hope कि इस शो को भी आप सब लोग सुनेंगे and you will be liking it a lot. And since before I start, let me also tell you that आज का जो show है is going to give you the information that you actually want. Last time I did not go with those things क्योंकि before going to practical we need to know the theoretical things और जो चीज़ें इतनी important नहीं लगती है लेकिन plenty of time important होती है. So let's get started. Since जब हम लोग के पास में फ़ोन आता है कोई सा भी एंड्रॉइड या हम लोग लेते हैं या वी वांट टू ट्राई, तो फर्स्ट थिंग कम इज माइंड कि टॉकबैक्स में इनेबल कैसे करें. आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि ये जो एंड्रॉइड फ़ोन है इसमें टॉकबैक रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है एंड वी कैन यूज़ इट. लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं, ये नहीं जानते हैं कि हाउ टू इनेबल एक्सेसिबिलिटी और उसके बाद के साथ फ़ोन को डील कैसे करें. तो फ्रेंड्स, दिस शो फोकस ऑन दिस थिंग्स ओनली कि एक्सेसिबिलिटी कैसे इनेबल करनी है, क्या स्टार्ट करना है, फ़ोन जब लेते हो तो कैसे सेटअप करना है, डेटा कैसे ट्रांसफर करना है, सो गाइस, जब एक्सेसिबिलिटी आप इनेबल कर रहे हो फ़ोन में, स्पेशली ऑन द फर्स्ट टाइम जब आप फ़ोन स्टार्ट करते हो, जब आप फ़ोन बाय करते हो, तो देयर आर 2 स्टेप्स. जस्ट प्रेस द पावर बटन फॉर 2 or 3 seconds, वेट फॉर अ बीप और वाइब्रेशन, और when you feel the vibration or beep, just keep 2 fingers on the screen and wait for TalkBack to speak. If all goes right, TalkBack will come saying कि अगर आपको एक्सेसिबिलिटी इनेबल करनी है तो keep holding down 2 fingers या keep fingers whatever जो भी वे होता है. In my case, मेरे पास जो मोटोरोला का फ़ोन है एंड्रॉइड की, it says कि keep holding down 2 fingers to enable accessibility. तो मीन्स एक बार जब वो बोल देता है तो इफ़ आई कीप स्क्रॉल फिंगर डाउन तो एक्सेसिबिलिटी इनेबल हो जाती है. तो फ्रेंड्स, अभी इज़ जस्ट नॉट इनफ टेल यू. मेरे पास एक डेमो है इस फ्रॉम आईसी प्रोजेक्ट इटसेल्फ. वो एक्चुअली वीडियो था बट आई हैव कन्वर्टेड टू ऑडियो. उस ऑडियो में उसे लाइव डेमोस्ट्रेशन की टॉकबैक फर्स्ट टाइम पे कैसे इनेबल करना है. You guys listen that demo and I will come back. उस डेमो को सुनने से नॉट जस्ट आपको ये पता चलेगा कि टॉकबैक इनेबल कैसे करना है, बट ऑल्सो आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ बेसिक जो हैं स्क्रीन के साथ एंड्रॉइड से वो क्या है. तो लेट्स लिसन दिस डेमो फर्स्ट. उसके बाद में हम लोग आते हैं एंड आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू टू इन दिस शो. Hi, welcome to the first video in a series on accessibility features in Android 4.2 Jelly Bean. I'm Alan Vivaret, and in this video I'll explain how to enable accessibility features for users with visual impairments on a brand new Nexus device running Android 4.2. Later in this series, we'll talk about how to interact with specific applications and explain some new features like screen magnification and gesture-based menus in more depth. But for now, let's say I have a brand new device running Jelly Bean. I've turned on my device and it's waiting at the welcome screen. From the welcome screen, I can enable speech feedback by placing 2 fingers anywhere on the screen and holding them there. I'll just touch 2 fingers down near the center of the screen. Continue touching the screen until you hear a beep to enable accessibility mode. Still holding. Accessibility mode enabled. Accessibility tutorial. Lesson 1, Exploring the screen. So this tutorial explains the Jelly Bean interaction model, which I'll just summarize as touch to focus, double tap to select, and swipe left and right to navigate, double tap to select. I'll leave the rest of the tutorial as an exercise to the viewer. For now, I'll explore to the bottom left and find the exit button.
I'm just going to touch down in the center of the screen and move down and left to the corner. Exit button. Now that I've focused on the exit button, I can double tap anywhere on the screen to select it. Setup wizard. Welcome. Now I'm back at the welcome screen. From here, I can swipe right to move through the items available on the screen. English United Kingdom button. With speech feedback turned on, my device supports US English, which is currently used, and UK English, which I can switch to. After setting up a network connection, I can also download additional languages. For now, I'll just swipe right again to keep navigating the screen. Start button. If I double tap here, I can continue through setup. I'll double tap to activate the start button. Clicked. Select Wi-Fi. Showing items 1 to 3 of 3. From here, I can continue setting up my device using Explore by Touch, swipe navigation, and double tapping to select items. Thanks for watching. ओके गाइस, तो आफ्टर लिसनिंग दिस डेमो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि स्क्रीन टच कैसे वर्क करता है टॉकबैक विद एंड्रॉयड फोन, और क्या उसका मतलब था कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी आइकन को सुनते हो और उसके बाद आप कहीं भी इसे क्लिक करो तो वो वही क्लिक होता है। ये एक्सेसिबिलिटी का फीचर है बेसिकली, और जो कि एंड्रॉयड 4.1 से शुरू हुआ। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। जब फ़ोन हम लोग ले लेते हैं तो इसकी कॉमन थिंग की जब हमें हमारा डेटा भी चाहिए होता है, इसमें म्यूज़िक, पिक्चर, कैलेंडर एंड स्पेशली कॉन्टैक्ट्स एंड मैसेजेस एंड कैलेंडर। तो म्यूज़िक का तो क्या होता है कि म्यूज़िक कॉपी पेस्ट हो जाता है, कैसे भी हो जाता है, या हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मेन थिंग इज कॉन्टैक्ट और मैसेजेस और कैलेंडर, जो कि वी कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग, या उसके बिना कर सकते हम लोगों का काम नहीं करता। तो फिर एंड्रॉयड जो है वो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट थिंग इज दैट कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उसको कैसे डील करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, सो दैट वी कैन गेट द थिंग्स वी वांट। आई रिमेंबर एक नॉन फ्रेंड्स थे जिन्होंने कोई नया फ़ोन लिया था एंड्रॉयड का, बट दे वर नॉट एबल टू ट्रांसफर, इवन सर्विस सेंटर वाले लोग भी उनका हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो वह बहुत सिंपल सा है, जो आपके कॉन्टैक्ट होते हैं लाइक इन नोकिया, इन आईफोन। तो जो नोकिया से आप अगर स्विच कर रहे हो तो यू हैव अ वेरी सिंपलेस्ट वे। आप नोकिया के फ़ोन में कॉन्टैक्ट में जाइए, सिलेक्ट ऑल कीजिए, सिलेक्ट ऑल आई मीन मार्क ऑल, और उसको कॉपी टू मेमोरी कार्ड कर दीजिए। एंड देन जब कर लेते हो तो इन योर फोन मेमोरी कार्ड वहाँ पे एक अदर फोल्डर में कॉन्टैक्ट का फोल्डर बनता है, जिसे आपने लेना होता है। उसे लेके आप अपने जो एंड्रॉयड फ़ोन में या मेमोरी कार्ड में वेयर यू वांट उसको रख दो। एंड देन आफ्टर दैट उसको रखने के बाद आप फ़ोन के कॉन्टैक्ट में जाएंगे सो और वहाँ पे जाके आप वहाँ पे ऑप्शन देंगे, मोर ऑप्शंस के अंदर आपको वहाँ पे सेटिंग्स मिलती है और कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, और एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है, जो आपको इंपोर्ट करना है, आपको कॉन्टैक्ट सेव करना है अपने फ़ोन में, मीन्स यू वांट टू इंपोर्ट, तो वहाँ पे इंपोर्ट चूज़ करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में आपको पूछा जाता है कि एक वी कार्ड फाइल आपको लेनी है या मल्टीपल वी कार्ड फाइल लेनी है। वी कार्ड फाइल में एक फॉर्मेट होता है कॉन्टैक्ट का जो मोस्टली एंड्रॉयड में यूज़ होता है। एंड्रॉयड में, आईफोन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इवन गूगल में भी वही यूज़ होता है। तो वो आपसे पूछा जाता है अगर आप मल्टीपल चूज़ करते हो या सिंगल चूज़ करते हो। सिंगल चूज़ करते हो तो आपको ब्राउज का डायलॉग बॉक्स होता है मेमोरी में, उस तरीके से कॉन्टैक्ट की लिस्ट आती है, वहाँ से आपको चूज़ करना होता है। अगर आप मल्टीपल करते हो तो फिर आप बहुत सारी कर सकते हो, पर एक और ऑप्शन रहता है फिर ऑल। जब आप ऑल कर देते हो तो इट्स बिकम वेरी सिंपल। जब ऑल करने के बाद उसको थोड़ा सा टाइम लेता है डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ द कॉन्टैक्ट बैकअप। और उसके बाद में वो जैसे उसको वी कार्ड फाइल मिल जाती है आपके फ़ोन मेमोरी से, मेमोरी कार्ड से, वो उसको आपके फ़ोन में बैकअप ऐसे कॉन्टैक्ट सेव हो जाते हैं सारे कॉन्टैक्ट्स में। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स जो नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए, एंड्रॉयड 4.1 और 2 में भी आपको कॉन्टैक्ट्स नाम से फोल्डर नहीं मिलेगा। स्पेशली इन 4.2 में तो नहीं मिलेगा। आई रिमेंबर 4.1 में मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है लेकिन 4.2 में नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे पीपल करके का आपको ऐप मिलता है। पीपल मीन्स टू सेम कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एंड्रॉयड में से पीपल का नाम दिया गया। तो वो आपको उसी ऐप में जाना होता है। ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताया वो आपको जानना होता है और उसके बाद में आपके सारे कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो कॉन्टैक्ट का हो गया। एंड मैसेजेस का फ्रेंड्स ये होता है कि जो नोकिया के मैसेजेस हैं उसको लेना पॉसिबल तो है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा वर्क ज़्यादा उसमें करना होता है। कुछ नोकिया टू SMS एक्टिविटी कुछ सॉफ्टवेयर होता है जो कि PC पे होता है। वो बेसिकली ये करता है कि आपके नोकिया का जो बैकअप आप बनाते हैं, आपको उसमें नोकिया का बैकअप बनाना होता है जो .npu फाइल में सेव होता है आपके फ़ोन में। उसमें से वो मैसेज को निकालता है और .xml फाइल में सेव करता है सो दैट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रीड इट। तो उसके बाद उसको उससे रिस्टोर किया जा सकता है। एंड्रॉयड के भी कुछ ऐप्स हैं, मैंने 1-2 बार ट्राई किया था बट आई डिडंट गॉट मच सक्सेस। थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी का भी इशू था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया, तो आई कुडंट मेक इट हैपन। बट इट्स पॉसिबल। अगर आपको बहुत मस्ट है यू कैन गिव इट अ ट्राई। एंड फिर उसके बाद में आपकी कैलेंडर्स एंड मीडिया एंड फोटोज़। तो मीडिया एंड फोटोज़ आप वैसे सिंपल कॉपी पेस्ट से भी सेव कर सकते हो। जब आप फ़ोन को कनेक्ट करते हो आपके फ़ोन पे कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे आपका एज एन ड्राइव आ जाता है जैसे कि हमारे नोकिया फ़ोन आते हैं इन द सेम वे। वहाँ पे इंटरनल स्टोरेज या SD कार्ड के नाम से होता है। इंटरनल स्टोरेज मीन आपका फ़ोन मेमोरी एंड SD कार्ड मीन आपका मेमोरी कार्ड। वहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, DCIM, इमेजेस, मीडिया, म्यूज़िक एंड सो ऑन। तो जो DCIM वाला फोल्डर होता है वहाँ पे एंड्रॉयड आपकी इमेजेस को सेव करता है। मीडिया या म्यूज़िक में आप कुछ सॉन्ग्स रख सकते हो। और कैलेंडर के लिए ये होता है कि अगर आपके फ़ोन में कोई कैलेंडर है जैसे कि मान लीजिए नोकिया में या तो अगर आप जैसे कि सैमसंग का आपका फ़ोन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके अपने सॉफ्टवेयर हैं PC के जो आपको उसका पूरा डेटा एज में ट्रांसफ़र करने देता है। आप उसे PC में सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर होता है सैमसंग काइस के नाम से होता है, SAMSUNG सैमसंग काइस CISE। उसमें सारे ऑप्शन रहते हैं। वो द सेम वे वो .npu फाइल जो भी आपकी फाइल होती है उसके बेस पे वो आप वहाँ से उसको कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने कैलेंडर्स को, सबको मिलने को। नॉट जस्ट फॉर नोकिया बल्कि वहाँ पे सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप कौन से फ़ोन से आपका डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, नोकिया से कर रहे हो, आईफोन से कर रहे हो या फिर एंड्रॉयड से ही कर रहे हो, LG फ़ोन से कर रहे हो। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम इज़ देयर कि जो सैमसंग का सॉफ्टवेयर है वो एक्सेसिबल नहीं है। इन सेम वे सोनी का भी एक अपना सॉफ्टवेयर है PC कंपेनियन के नाम से जो कि सेम काम करता है। मीडिया, कॉन्टैक्ट और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर का।
तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। जो सोनी का सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा बहुत मैनेजेबल है विद जॉस, तो वो यूज़ किया जा सकता है। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जो वहाँ पे एक टर्म रहता है सिंक की सिमिलर चीज़ है। सिंक मीन्स वो आपके कंप्यूटर से या आपके डेटा से आपके फ़ोन की डेटा को सिंक करता है, मीन्स आपके फ़ोन में और आपके कंप्यूटर में सेम डेटा हो जाता है। तो बैकअप से हालांकि थोड़ा डिफरेंट टर्म है, लेकिन वहाँ पे आपको सिंक का ऑप्शन भी हो सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज और इट। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ कॉन्टेक्स्ट था। वहाँ पे वो मीडिया का भी ऐसे ही रहता है, ब्राउज करा के मीडिया को वहाँ पे वो सिंक करना होता है आपके फ़ोन से आपको, या उसमें ऐड करते हैं आपकी उसकी लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे आपके फ़ोन में वो सिंक हो जाता है। एंड इसके बाद में फ्रेंड्स ये होता है कि आपका जो फ़ोन होता है, जो आप फ़ोन यूज़ करते हो, या आपको मान लीजिए कि आप किसी बंदे से हेल्प ले रहे हो ऑन स्टार्टिंग टाइम पे, तब ये होता है कि उन लोगों को पता नहीं होता कि फ़ोन को कैसे यूज़ करना है, तो दे गेट कंफ्यूज। क्योंकि हम लोगों का जो फिंगर वर्क करता है वो डबल टैप, 2 फिंगर स्क्रॉल अप, 2 फिंगर डाउन स्क्रॉल डाउन, 2 फिंगर राइट लेफ्ट। तो हम लोगों का जो होता है एक की जगह 2 फिंगर से काम होता है, और सिंगल टैप की जगह डबल टैप से काम होता है। तो जब टॉकबैक इनेबल रहता है तो ये हमें जेस्चर्स कह सकते हो आप, ये यूज़ करना होता है। लेकिन वो साइटेड पीपल ये कंफ्यूजिंग होता है, उनको इवन ये भी लगता है कि उनका फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या उनका फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो व्हेनेवर यू एनकाउंटर इन दिस सिचुएशन, जब आप किसी का फ़ोन ट्राई करने के लिए ले रहे हो या किसी से फ़ोन इनिशियली हेल्प ले रहे हो सेटअप करने के लिए, तो कीप दिस इन माइंड। उनको ये बताओ कि जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो जो एक टैप वो करते हैं, जस्ट ये डबल टैप, एक फिंगर से 2 बार टैप, और जो स्क्रॉल करने के लिए लिस्ट को वो एक फिंगर से करते हैं, उसे उनको 2 फिंगर से करना है। अगर वो ये 2 चीज़ आपकी समझ जाते हैं तो उनके लिए फ़ोन को फिर आपके लिए हेल्प करना या अपने फ़ोन को यूज़ करना, ये एक्सेसिबिलिटी इनेबल करने के बाद बंद करना उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आफ्टर ट्रांसफरिंग मीडिया और कॉन्टैक्ट्स और सब के बाद में आई हैव सम मोर थिंग्स टू शेयर विद यू सो दैट यू कैन गेट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस फ्रॉम योर फोन। So friends, let me start with language and input settings menu. ये हम लोगों के लिए और फ़ोन के लिए, स्पेशली हमारे यूजर्स के लिए, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो वी विल हैव टू चेंज सूजर और लेटर, तो दैट्स व्हाई आई थॉट टू कवर इट। तो फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज इनपुट मेन्यू होता है वहाँ पे आप अपने फ़ोन का लैंग्वेज, बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो फ़ोन की होती है वो सेट कर सकते हैं, और इनपुट मेथड यानी कि कीबोर्ड, प्रॉपर कीबोर्ड, इवन हार्डवेयर कीबोर्ड की जो सेटिंग्स होती है वो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है लैंग्वेज का, फ़ोन लैंग्वेज का, यहाँ पे फ़ोन के जो भी लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं वो सारी रहती हैं लैंग्वेज। आप जिस पे भी क्लिक करते हो वो एक्टिवेट हो जाती है। दिस सेटिंग इज एक्चुअली माइट बी डेंजरस, क्योंकि अगर गलत लैंग्वेज पे क्लिक हो जाता है तो
जो वो गलत लैंग्वेज है वो पूरे फ़ोन की बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज बन जाती है, फिर पूरे फ़ोन का लैंग्वेज, पूरे फ़ोन का आइकन उसी लैंग्वेज में होते हैं, और जिसे रिकवर करना थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश तो हम लोग किसी से अगर ना भी मतलब हम नहीं भी पढ़ पा रहे तो किसी से पढ़वा के कर सकते हैं, लेकिन अदर लैंग्वेजेस तो और भी कहीं नहीं जानता, राइट। तो लैंग्वेज इनको इस बेस्ट कि आप उसको ना छेड़ें, अगर छेड़ रहे हैं या देख भी रहे हैं तो बी केयरफुल, बी कॉशियस, और वहाँ पर ध्यान से लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, या फिर वहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेजेस है, आई टॉकबैक का सपोर्ट हालांकि है कुछ लैंग्वेजेस के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए उसको समझ पाना, स्पेशली क्योंकि वी आर फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज ही ज़्यादा होता है, तो हम लोग के लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ नेवर एवर चेंज दी सेटिंग। उसके बाद आई वुड लाइक टू कवर कीबोर्ड ऑप्शन है, क्योंकि कीबोर्ड का जो है फंडा वो थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोग के लिए, क्योंकि वी डोंट नो द सेटिंग, एंड इन रिज़ल्ट ये होता है कि हमें लगता है कि एक्सेसिबल नहीं है या फिर हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे, लेकिन एक्चुअली वो ये होता है कि वहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं जिन्हें चेंज करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उसे यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक वहाँ पे एक फीचर होता है ऑटो करेक्शन। ऑटो करेक्शन मीन्स जो सॉफ्टवेयर है, जो कीवर्ड है, वो अपने अकॉर्डिंगली जो वर्ड हम लोग टाइप कर रहे हैं, जो उनके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वर्ड है उसके अकॉर्डिंग, वो उसको सिलेक्ट कर लेता है और वो उसको चेंज कर देता है। जैसे कि कुछ भी आप लैंग्वेज स्पेलिंग लिख रहे हो, अगर आप गलत स्पेलिंग लिख रहे हो तो उसे अपने हिसाब से सही मान के सही लिखेगा, या फिर आप स्पेशली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है जब हम लोग हिंदी लिखने की कोशिश करते हैं उसे, जब हम लोग हिंदी लिखने की कोशिश करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल क्या KY है तो वो उसे कुछ और बना देगा, लाइक KEY या कुछ भी, जैसे ही हम लोग स्पेस देंगे वो वर्ड चेंज होता है, और हमें लगता है कि वी आर नॉट एबल टू टाइप, हमसे ये नहीं हो रहा, लेकिन वो एक्चुअली हमसे नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता, वो अपने आप चेंज हो जाता है। और ये जो चीज़ है बेसिकली इंग्लिश यूज़र जो बहुत अच्छा इंग्लिश, सबसे ज़्यादा इंग्लिश यूज़, आई मीन इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हो, पर कई बार टॉकबैक भी प्रॉपरली अनाउंस नहीं करता, तो समवॉट कंफ्यूजिंग। तो इस अगर आपको ये चीज़ चेंज करनी तो आपको उस कीबोर्ड की सेटिंग में जाना होता है, लैंग्वेज इनपुट में वो कीबोर्ड होता है, वहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं या स्वाइप करते हैं, मैं आपको बताऊंगा स्वाइप एंड स्क्रॉल के बारे में भी, तो वहाँ पे उस कीबोर्ड जिसका भी नाम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल कीबोर्ड, तो उसके पास में उसकी सेटिंग्स बटन भी होता है ऑन द राइट साइड। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर यू गेट द एक्सेस ऑफ द सेटिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। वहाँ पे आपको स्पेशली ऑटो करेक्शन फीचर को तो टर्न ऑफ करना ही चाहिए, और वहाँ पे एक ऑप्शन और भी रहता है की पॉपअप डिले, उसे भी बंद कर दो, बेस्ट रहता है। और ऑटो करेक्शन तो बंद कर ही दिया हमने, और एक और रहता है वहाँ पे सजेशंस का। सजेशन अगर आप चाहो तो ऑन रख सकते हो, वो ये होता है कि कीबोर्ड के ऊपर वाले एरिया पे वो सजेशन आते रहते हैं, जो अगर आपको उनमें से कोई ठीक लगता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। देन जो ऑटो सजेशंस वाला फीचर है, दिस इज़ सिमिलर टू नोकिया में जो होता था क्रिएटिव टेक्स्ट, ऑलमोस्ट वही चीज़ है ये, तो ये यूज़ की जा सकती है, लेकिन जो ऑटो करेक्शन है वो बंद कर लेना चाहिए। इसके बाद एक जेस्चर टाइपिंग का भी फीचर रहता है, बहुत सारे कीबोर्ड्स में बिल्ट हैं, उसे भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि टॉकबैक के साथ में इसका कोई सपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है जेस्चर टाइपिंग का। तो इट्स बेटर टू टर्न ऑफ द जेस्चर टाइपिंग, की पॉपअप डिले और ऑटो करेक्शन। इसको बंद करने के बाद फ्रेंड्स बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी, स्पेशली अगर इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी यूजर्स में प्रॉब्लम आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और ऑप्शन है जो कि डायरेक्टली तो मैटर नहीं करता है, बट हाँ फ़ोन की परफॉर्मेंस के लिए यू कैन से कि इट डज मैटर। अगर आप
एनिमेशन जो होते हैं स्क्रीन पे, जो विजुअल फीलिंग्स होता है, अगर एनिमेशन जो है अगर उसे आप टर्न ऑफ कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों के लिए डजंट मैटर कि एनिमेशन स्क्रीन में कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग कर सकते हैं तो वी मस्ट सेव द बैटरी। एनिमेशन को बंद करने से बैटरी भी सेव होती है और परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो एनिमेशन को ऑफ करने के लिए हमें फ्रेंड्स सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शंस में जाना होता है और वहाँ पे एनिमेशन की तीनों ऑप्शन जो होते हैं, लाइक विंडो एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन, और एक और भी रहता है जो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड क्या है, और उन सबको आपको बंद करना है, नो एनिमेशन करना है। नो एनिमेशन चेकबॉक्स पे चेक करना है, उससे एनिमेशन का जो भी धंधा है उसका क्लियर हो जाएगा और फ़ोन का डिटेल कुछ सिंपल हो जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक USB डिबगिंग का फीचर रहता है जो बेसिकली इन डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन जब आप एडवांस चीज़ें आपको फ़ोन के साथ करना चाहते हो, लाइक रूट, कस्टम रोम एंड ऑल दिस थिंग, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी, तो उस टाइम पर ये चीज़ बहुत काम आती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा फ़ोन नॉर्मल वे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। MTP मोड जो नॉर्मल होता है, जब आप कभी कनेक्ट करते हो तो आपने देखा होगा जो लोग यूज़ कर रहे हैं कनेक्ट, जब नोटिफिकेशन बाद में वो पे आ जाता है कि कनेक्टेड ऑन MTP मोड, टच टू चेंज सेटिंग से कुछ आता। तो MTP बेसिकली मीन्स मीडिया ट्रांसमिट प्रोटोकॉल। वो मोड जो होता है वो इसके लिए बनाया गया है कि मीडिया, फोटोज, म्यूज़िक, वीडियोस सब कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए, मीन्स फॉर यूज़र के लिए ये MTP मोड है। लेकिन कई बार जब नहीं कनेक्ट हो पाता MTP मोड से फ़ोन, तब USB डिबगिंग वाले मोड पे फ़ोन कनेक्ट करने से कंप्यूटर से फ़ोन कनेक्ट हो जाता है और उससे भी हम लोग की ट्रांसफ़र डेटा, सॉफ्टवेयर जो भी है हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ और है, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को कोई सॉफ्टवेयर मिलता है जो हम प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टॉकबैक का अपडेट बेटा वर्जन हम लोग ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। किसी भी सॉफ्टवेयर का नया बेटा वर्जन आया वो हम लोग ट्राई करना चाहते हैं, तो वो इन जनरल हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने फ़ोन में। उसके लिए वहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होती है, उसके बाद में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होना होता है। उसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाना होता है और नीचे स्क्रॉल करते करते अननोन, अलाउ अननोन सोर्सेस का एक चेक बॉक्स होता है, उसे क्लिक करना होता है। एक वार्निंग आएगी स्टैंडर्ड जो जैसे आपको ओके करना होता है। उसके बाद में आपके फ़ोन में कोई भी जनरल जो सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉइड का जो .exe के एक्सटेंशन के साथ में होता है, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स कीप इन माइंड कि अगर आप कोई भी APK सॉफ्टवेयर अदर देन गूगल प्ले स्टोर करते हो, मैन्युअली कोई इंस्टॉल करते हो, तो मेक श्योर कि वो सही सोर्सेज से आया हुआ सॉफ्टवेयर है या आपने सही जगह से मिला है। अगर कोई गलत साइट से या फिर ऐसी कोई पायरेटेड साइट से आपको कोई सॉफ्टवेयर मिला होता है, तो देयर आर मैनी चांसेस कि वो सॉफ्टवेयर में भी वायरस होगा और उससे फिर आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस भी ख़राब होता है, फ़ोन में प्रॉब्लम भी आ सकती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो डेटा होता है, पर्सनल डेटा, वो भी एक्सपोज हो सकता है, वो भी स्टील हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप सही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। अगर आप स्पेशली आप मैनुअली कुछ डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, अगर आप डाउनलोड करते हो तो यू नॉट नीड टू वरी, पर अगर आप यहाँ से करते हो तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप सही चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो आपके फ़ोन में। और फ्रेंड इसके बाद में कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ कर लेने के बाद भी नॉर्मली फ़ोन वैसे तो PC से कनेक्ट करते ही कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में कनेक्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता, PC उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, बाई एनी रीजन नहीं कर पाता। तो इन दैट केस आपको ये करना होता है कि उस जो फ़ोन पर्टिकुलर ब्रांड है उसकी USB ड्राइवर सब कुछ ये होते हैं, वो आप उस ब्रांड की स्पेसिफिक वेबसाइट से या सिंपल गूगल सर्च से आपको मिल जाते हैं। जनरली अगर कहीं ना मिले तो XDA फोरम पे आपको सब कुछ मिल जाता है। XDA फोरम इज़ फॉर गूगल एंड्रॉयड,
एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको एंड्रॉयड के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए, कोई भी नया इनोवेशन क्या हो रहा है उसके अंदर, कस्टम रोम या रूट जो भी है, वो आपको वहाँ से बहुत अच्छे लेवल पे मिल जाता है, बहुत अच्छी जानकारी मिलता है। इनफैक्ट आई मस्ट से कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले वहीं आती है, उसके बाद में पूरे इंटरनेट पे स्प्रेड होती है। तो आपको वो यूएसबी ड्राइवर आपको डाउनलोड करने होते हैं वहाँ से गूगल से सर्च करके या SDM से या फिर आपके वेंडर की वेबसाइट से। उसके बाद में फ़ोन आप उससे कनेक्ट हो जाता है। अगर आपको पर्टिकुलर वो ड्राइवर नहीं मिलता तो फिर आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है जो आप यूज़ कर रहे हो। लाइक जैसे कि आप सैमसंग का यूज़ कर रहे हो तो सैमसंग का ही, सोनी का यूज़ कर रहे हो तो पीसी कंपनी, मोटोरोला का यूज़ कर रहे हो तो मोटोरोला डिवाइस मैनेजर का यूज़ सॉफ्टवेयर होता है उनका। उसे इंस्टॉल करने से भी उसमें ड्राइवर्स आ जाते हैं और फिर हमारी जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है, वर्क करने लगता है और कंप्यूटर से कनेक्ट भी हो जाता है। और उसके बाद में फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि इन सैमसंग फ़ोन से देखा गया है, स्पेशली मे बी अदर फ़ोन में भी हो सकता है, लेकिन सैमसंग फ़ोन में जब हम लोग टॉकबैक इनेबल करते हैं तो प्रॉब्लम आती है कि टॉकबैक बोलता नहीं है, टॉकबैक की जो स्पीच आउटपुट है वो आता नहीं है और ये लगता है कि एक्सेसिबिलिटी का बग है या क्या है। लेकिन एक्चुअली थिंग इज दैट ऐसा क्यों होता है ये तो नहीं पता मेरे को, लेकिन उसमें रीज़न ये होता है कि आपका फ़ोन का लैंग्वेज और टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट में से लैंग्वेज होता है और डिफरेंट होता है। तो इन दैट केस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप TTS की सेटिंग में जाओ, जो कि आपको लैंग्वेज इन इनपुट में होता है या फिर एक्सेसिबिलिटी में होता है। वहाँ पे TTS के ऑप्शंस में जाके, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल TTS है तो उसके राइट साइड में लॉन्च चेंजिंग सेटिंग बटन होता है, या फिर सैमसंग TTS है, जो भी आप अदर TTS अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो होता है। वहाँ से आप उसके अंदर लैंग्वेज चेंज करो तो स्टार्ट हो जाता है बोलना। और एक और चीज़ है लैंग्वेज इनपुट के बारे में जो आई फॉरगॉट एक्चुअली, पहले मैं भूल गया था। अगर आप कोई और DTS इंस्टॉल करते हो लाइक एलोक्वेंस या इवोना या eSpeech या और एनीथिंग अदर, तो उसे भी इनेबल करने का तरीका यहीं से होता है, टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट में से। फिर आप चाहे एक्सेसिबिलिटी वहाँ पे जाओ या फिर लैंग्वेज इनपुट में जाओ, वो एक ही होता है। वहाँ से आपको पर्टिकुलर आइकन को सिलेक्ट करना होता है जो आपने इंस्टॉल किया है और वो एक स्टैंडर्ड वार्निंग आता है, उसे ओके करने के बाद वो स्टार्ट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये सब सुन के एंड यू विल बी लाइकिंग इट। मैं हूँ आपकी दोस्त, ले चलूंगी आपको सुहाने म्यूजिकल सफर पर, जहाँ होंगे आप, हम, ढेर सारा म्यूजिक और प्यारी प्यारी सी म्यूजिकल बातें आपके और हमारे बीच। तो इस सफर में हमारी हम सफर बनने के लिए तैयार हो जाइए मेरे यानी RJ अंकिता के साथ। Every Sunday 7 to 8 p.m. प्रोग्राम म्यूजिक एक्सप्रेस पर जियो विद म्यूजिक ओनली ऑन रेडियो उड़ान। Okay guys, so welcome back. After the break I'm again here with you. So friends, फ़ोन सेटअप करने के बाद में अब लेट मी डिस्कस करने के बाद एक्सेसिबिलिटी, हाउ टू यूज़ द फ़ोन विद एक्सेसिबिलिटी इनेबल। तो कि सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आई थिंक इस शो का है और मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेटिंग फॉर दिस। So friends, let's go on without any delays. तो आपने सुना होगा टच, स्वाइप, टैप एंड होल्ड, स्क्रॉल, एक्सप्लोर, ये जो टर्म्स आपने सुने होंगे, ये ऑल टर्म्स जो भी हैं जेस्चर, जैसे कि
तो ये जो टर्म्स हैं सारे, ये एक्सेसिबिलिटी को यूज़ करने के सारे समराइज हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं, अपने अपने वेज अलग अलग हैं किसी किसी चीज़ के, थोड़े से डिफरेंस हैं, बाकी ऑलमोस्ट वे समराइज यही है। तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू ये क्या होता है टच, क्या होता है एक्सप्लोर, और क्या स्वाइप होता है, और ऑल द थिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ टच। कि टच होता है एक समथिंग, ये जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, आई एम टचिंग द स्क्रीन फ्रॉम मैनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन, कहीं से भी। तो ये तो है टच। टचिंग सिंपली टचिंग द स्क्रीन। एक टर्म होता है फ्रेंड्स एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मीन्स स्क्रीन को अलग अलग एरिया से मतलब अपनी फिंगर को एक जगह पर रख के फिर डिफरेंट एरिया ऑफ स्क्रीन पे मूव करना। और एक्सप्लोर करने से क्या होता है कि स्क्रीन के हमारी फिंगर के नीचे जो भी आइकन्स होते हैं, जहाँ पे भी हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो सब आइकन्स को टॉकबैक अनाउंस करता है। लाइक तो ये है एक्सप्लोर करने का जो वे है। देख ये जो मैं अभी कर रहा हूँ स्क्रीन पे, अपनी मेरी फिंगर स्क्रीन पे है, मैं इसे हटा नहीं रहा। और अभी मैं ऊपर की तरफ और राइट डाउन 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 लेफ्ट राइट डाउन पूरी स्क्रीन पे मैंने फिंगर को मूव कर रहा हूँ। तो आप देखते हो कि जो भी आइकन्स मेरे फिंगर के नीचे आते जा रहे हैं वो ये बोलता जा रहा है। तो बेसिकली इससे होता है कि स्क्रीन पे हम लोग जब भी कोई भी आइकन होता है क्विकली फाइंड करने के लिए, जब हमें पता हो कि जहाँ पे हम देख रहे हैं उसके थोड़ा सा नीचे आइकन हो सकता है या राइट साइड में हो सकता है, तो ऐसे केसेस में एक्सप्लोरिंग हमें काम आ सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट की लिस्ट है बहुत लंबी सारी। अगर हमें पता है कि जैसे कि 4 कॉन्टैक्ट हैं, फॉर एग्जांपल ए है, उसके नीचे 4 कॉन्टैक्ट हैं, तो हमें पता है कि ये शायद चौथे नंबर का कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो अगर हम स्वाइप करेंगे तो सारे कॉन्टैक्ट 1 बाय 1 आएंगे। स्वाइप भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हमें पता है कि जब नीचे चौथा कॉन्टैक्ट हो सकता है तो हम आइडिया से थोड़ा सा नीचे हो सकता है कि हमारे जिम में तीसरे कॉन्टैक्ट पे आए या फिर चौथे पे आ जाए, या हो सकता है 5वें पे भी आए। तो उससे हमें नेविगेशन क्विक हो जाता है और हमें पता होता है कि हम क्या मतलब डायरेक्टली हम पहुँच सकते हैं। जब हम तो अच्छे से यूज़ करने लग जाते हैं एक बार के लिए, उसके बाद में ना ये ईजी हो जाता है करना। और फ्रेंड्स लेट मी टेल यू स्वाइप जो होता है फ्रेंड्स, अपनी फिंगर को स्क्रीन पे रख के लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करना और फिंगर को स्क्रीन से हटा देना इन अ क्विक सक्सेशन। मतलब बहुत ज़्यादा क्विक भी नहीं, लेकिन हाँ क्विक। तो लाइक मैं जो अभी कर रहा हूँ, मैं लेफ़्ट टू राइट स्वाइप कर रहा हूँ, अब मैं राइट टू लेफ़्ट कर रहा हूँ, तो ये स्वाइपिंग दिस कॉल। और एक होता है एंड्रॉयड के अंदर या किसी भी एक टैप एंड होल्ड भी एक होता है जो आपने बहुत बार सुना होगा। तो फिर टैप एंड होल्ड जो होता है, टैप एंड होल्ड इज समथिंग जो हमें और ऑप्शंस एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल ऑप्शन, उन्हें यूज़ करने के लिए टैप एंड होल्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो टैप एंड होल्ड लाइक ये देखिए प्ले स्टोर, ये प्ले स्टोर पे मैंने ये टैप एंड होल्ड कहते हैं, लॉन्ग प्रेस भी ये बोलता है कई बार टॉकबैक। अभी यहाँ पे स्क्रीन में कुछ आइकन्स हैं जो कि टॉकबैक से सपोर्टेड नहीं है, यूनिटी का इसमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन और भी हैं, जैसे कि रिमूव करने का ऑप्शन है, मूव करने का ऑप्शन भी है। और जैसे कि मैसेजिंग में है एग्जाम्पल मान लीजिए, तो मैसेजिंग में अगर हम लोग हैं तो जब हम टैप एंड होल्ड करते हैं तो टैप एंड होल्ड करने से जो अदर ऑप्शंस होते हैं तो वो अदर ऑप्शंस हमें मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज रखा हुआ है, अगर मैं इसको ये टैप एंड होल्ड किया, मैंने डबल टैप एंड होल्ड एक्चुअली, तो यहाँ पे मेरे को और ऑप्शंस मिल गए।
जो नॉर्मली नहीं मिले थे। ये मेरे को अदर ऑप्शंस मिले डबल टैप एंड होल्ड के बाद में। अगर मैं टैप करता हूँ और होल्ड करता हूँ तो नहीं होगा। अगर मैंने वो सिंगल टैप सिलेक्शन ऑन किया तो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा। ये देखिए टैप एंड होल्ड मैंने किया है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब मैंने ये किया है टैप एंड होल्ड, ये देखिए ये मैसेज ऑप्शन आ गए यहाँ पे। तो टैप एंड होल्ड इज समथिंग अदर ऑप्शन, एक्स्ट्रा ऑप्शन के लिए। लाइक हम व्हाट्सएप पे हैं, मैसेज को फॉरवर्ड करना है, कॉपी करना है, या किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, कॉन्टैक्ट को शेयर करना है, डायलर में है मतलब कॉल लॉग में है तो कॉन्टैक्ट को शेयर करना है, जल्दी से कॉपी पेस्ट करना है। तो ऐसी जगह पे टैप एंड होल्ड काम आता है टू गेट एक्स्ट्रा ऑप्शन जो हमें चाहिए होते हैं उसके लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग और डायलर के बारे में, जो कि शायद सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है, स्पेशली टाइप करना एंड्रॉयड पे। जो हम लोगों का सबसे बड़ा फियर होता है, जो हम लोगों का सबसे बड़ा डर होता है वो ये होता है कि हम टाइप कैसे करें। तो फ्रेंड्स अभी बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिकल थोड़ा सा मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पे कि इट्स नॉट हार्ड एक्चुअली, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। जस्ट वी नीड टू लर्न वंस, एक बार समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। तो फ्रेंड्स टाइपिंग करने का जो बेसिक फंडा ये होता है कि हमारी स्क्रीन पे जो कीबोर्ड होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, वो बिल्कुल पीसी स्टाइल का कीबोर्ड होता है, क्वाड कीपैड, या मैं अगर थोड़ा सा सिंपली बोलूँ तो वही कीपैड होता है जो हमने नोकिया फ़ोन में हम लोगों ने यूज़ किया होता है। बस फिजिकल बटन की जगह वर्चुअल बटन होते हैं। तो थिंग इज़ दैट कि जब हम कोई चीज़ को टाइप करना होता है तो टच टाइपिंग पे बेसिकली काम करता है। एक डबल टैप टाइपिंग वाला भी होता है कुछ कीबोर्ड फीचर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है। तो इस बेस्ट कि हम लोग ये यूज़ करें, इससे हमारी स्पीड भी बनती है सूनर और लेटर, और हमें कम से कम प्रॉब्लम आती है और क्विकली हमारा काम होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा एक बार डेमो देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास अब देखिए कि कीबोर्ड आ गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर रेडियो लिखना है, तो मुझे ये पता है कि रेडियो के लिए आर मेरे को जो चाहिए वो सबसे टॉप वाली लाइन में होगा, QWERT वाली लाइन में। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मेरा स्क्रीन पे जहाँ भी मेरी फिंगर लग गई, जैसे कि मान लीजिए एक्स पे लग गई है, अब मुझे आर चाहिए, तो मुझे पता है कि आर मुझे आगे भी नहीं मिलेगा, पीछे भी नहीं मिलेगा, मुझे ऊपर वाली लाइन में आर मिलेगा। तो मैं अपनी फिंगर को बिना हटाए स्क्रीन से मैं ऊपर ले जाऊँगा। अगर मैं हटा देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, ये देखिए मेरी फिंगर बी पे आ गई है, अभी मैंने हटाया नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए मुझे आर ढूंढना है, लेकिन मेरी फिंगर एफ पे पड़ गई और मैंने एक गलती कर दी, मैंने फिंगर हटा दिया और ये एफ टाइप हो गई, लेकिन मुझे आर चाहिए। तो मैं आर ढूंढूंगा, तो मुझे आर मिल गया अभी। तो मैंने अपनी फिंगर जरा सा नीचे हटाया और अब मेरी मुझे चाहिए ए। तो मुझे पता है कि ए जस्ट QWERT लाइन से जस्ट नीचे वाली लाइन में होता है, सबसे फर्स्ट लेटर। तो अकॉर्डिंगली मैंने अपनी फिंगर को मूव किया और मेरे को यहाँ पे ए मिल गया। ये मैंने ए टाइप हो गया, फिंगर हटाया। अब मुझे पता है कि मेरे को डी टाइप करना है, तो ए के बाद एस और एस के बाद डी आता है, क्वाइट ऑब्वियस। तो मैं थोड़ा सा फिंगर को आगे किया, थोड़ा सा और आगे किया, मुझे डी मिल गया और मैंने फिर वो फिंगर को हटा दिया। अब मुझे आई चाहिए, मुझे पता है कि वो राइट साइड में सबसे टॉप लाइन में है, तो मैंने अपनी फिंगर को थोड़ा सा उस साइड से ही स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट आई पे मेरा हाथ डायरेक्टली पड़ गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं पड़ता। मान लीजिए कि मेरा हाथ आर पे ही पड़ा है, तो अब मैं ये करूँगा, आई पे मेरा आ गया, अब मैंने ये आई टाइप कर दिया। अब मुझे ओ चाहिए, तो आई की जस्ट पास में वो होता है, मुझे ओ मिल गया, मैंने ओ टाइप कर दिया। अब हमें पता है कि जो स्पेस बार हमें स्पेस दबाना है, हमें ये पता है कि स्पेस बार नीचे की तरफ होगा और मिडिल में होगा समवॉट। तो मैं थोड़ा सा मिडिल से मैंने ट्राई किया, ये मेरा हाथ
ये वॉइस इनपुट पे पड़ गया। वॉइस इनपुट ये होता है फ्रेंड्स, जब आप इसको टैप एंड होल्ड करोगे एक बीप बजेगी। अगर आप क्लियर इनफ बोलते हो तो आपकी बात को, आपकी वॉइस इंस्ट्रक्शन को सुन के टाइप कर देगा। ये सब एंड्रॉयड में फीचर है आफ्टर 4.1, मतलब 4.1 से स्टार्ट हो गया था ऑफलाइन सपोर्ट। तो उसके पास मेरा स्पेस बार है, ये मैंने स्पेस बार दबा दिया। मैंने स्पेस बार पे फिंगर आ गई मेरी और मैंने टाइप कर दिया तो वीडियो टाइप हो गया। तो फ्रेंड्स आफ्टर टाइपिंग डायलिंग भी बहुत बड़ा इशू है, जैसे कि हमने अभी बात की थी। तो मैं आपको अब डायलिंग का भी थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड 4.4 है। इसमें डायलिंग का भी वही सेम वे वर्क करता है, टच एंड टाइप वाला। लेकिन अगर आपके पास 4.1 और 4.2 है तो आई थिंक उसमें यही होता है डबल टैप, वो बिल्कुल सेम वे। तो हम किसी आइकन पे क्लिक करते हैं और जो हमें अगर ढूंढना होता है तो, और ढूंढ के हम उसे क्लिक करते हैं और वही सेम वे होता है नंबर भी डायल करने का। एक फ़ोन का कीपैड बना हुआ है, उस पर नंबर ढूंढने, जैसे कि न्यूमेरिक वे में जो होता है इन जनरल, जो हमारा टेलीफोन स्टैंडर्ड टेलीफोन कीबोर्ड होता है उसकी तरह आप नंबर को ढूंढिए और डबल टैप कीजिए। लेकिन यहाँ पे जब अगर ये 4.4 है तो मैं आपको उसका डेमो देता हूँ। बिल्कुल सेम वे वर्क करता है जैसे कि हमारा टाइपिंग वाला था। लाइक मुझे 1 2 3 4 5 डायल करना है अभी। ओके, अभी मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइप हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने 1 है मेरी फिंगर 1 पे, 1 2 3 पे मेरी फिंगर है, मैंने हटा दी। अब मेरी 4 पे फिंगर है, मैंने हटा दिया। मेरी फिंगर 5 पे है, मैंने हटा दिया। ये डायल हो गया। और 5 6 8 और 0 के नीचे डायल बटन है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो कॉल कनेक्ट हो जाएगा। इस पर डबल टैप ही करना होगा, वही सेम वे। तो फ्रेंड ये तो हो गया आपका टाइपिंग और डायलिंग। अब लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट एडिटिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं और वो बाय मिस्टेक गलत हो जाता है। तो जैसे कि अभी नंबर डायल कर रहा था, मैं भी डायल कर रहा था, तो मैं इसको पूरा डिलीट कर दिया। लेकिन मेरे पास ये वे था कि मैं उस पर्टिकुलर नंबर को भी डिलीट कर सकता था जो मुझे करना है। तो वो उसके लिए फ्रेंड्स एक तो ये तरीका है कि अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हो अभी और जस्ट आपकी मिस्टेक हुई तो आप जस्ट सिंपली डिलीट की दबाओगे जो कीपैड पे होती है, या तो उसे हटाओ। और अगर आपको थोड़ा सा वर्ड पूरा गलत हो गया या थोड़ा सा आगे पीछे करना है तो स्वाइप करने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ फ्रेंड्स तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एडिट मोड पे स्वाइप करना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ऐसे केस में फ्रेंड आप अपने वॉल्यूम की जो होता है, वॉल्यूम की से राइट अप और डाउन के मतलब डिपेंड्स ऑन आप क्या चेंज करना चाह रहे हो, क्या डिलीट करना चाह रहे हो। तो अप एंड डाउन वॉल्यूम की से आपको कर्सर मूव करते हैं और उसे आप डिलीट, फिर उसके ऊपर कर्सर रख के डिलीट की दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब अगर आपकी ग्रामर कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर को डिलीट करेगा। और अगर आप वर्ड बाय वर्ड मूव कर रहे हो, यानी आपकी गारंटी अगर वर्ड है तो जिस कर्सर पे वर्ड पे कर्सर है वो वर्ड डिलीट होगा। वो डिपेंड्स ऑन आपने क्या रखा है। और कॉपी पेस्ट का जो तरीका है, कॉपी पेस्ट का तरीका ये है कि आप जो ग्रामरिटी होती है, अगर आप जिस भी ग्रामरिटी में हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जो भी आपका है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल वर्ड में होगी तो वो वर्ड कॉपी हो जाएगा। अगर आप टॉक बैक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वैसे यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कि एडिट मोड पे जब आप डबल टैप एंड होल्ड करते हो तो साइड में ऑन द बॉटम लेफ्ट कुछ सेकंड्स के लिए कॉपी और पेस्ट बटन आता है, अगर आप वहाँ से करते हो। और लेकिन टॉक बैक में भी अगर आप गारंटी भी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी ऑप्शन होता है। लेकिन आई वुड से कि आप एक बार, मेरे पास एक छोटा सा ऑडियो है जिसमें उन्होंने गारंटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। आई थिंक उससे बेटर मैं भी नहीं समझा पाऊँगा।
सो दैट फर्स्ट एक बार आप वो सुनकर आओ, सुनिए, आई एम प्लेइंग इट फॉर यू। उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आप गारंटी के थ्रू जेस्चर्स को यूज़ करते हुए कैसे एडिट कॉपी पेस्ट कर सकते हो टॉलपैड की हेल्प से। Hello and welcome. This is a short audio demo meant to demystify the whole idea of granularity or reading level as it was once known. On the eyes free list, many people are often inquiring, how can I review by character? How can I review by word? And many of us seem to assume that this is very common knowledge. But I get the feeling from reading some of the emails, even from frequent posters, that not everybody actually understands how it works. So I thought I would create this very simple demo, nothing fancy, nothing complicated, just to clear that out of the way so that everybody's user experience can hopefully be improved. The first and perhaps most important thing to understand before we can plunge into granularity is to understand what the accessibility focus is. The accessibility focus was introduced in Jelly Bean both so that users could have the option of swiping through a screen, a list of items, rather than just exploring straight to it and having to single tap, and also at the same time providing the opportunity for character review and word level review. So what is this accessibility focus? It is when focus is placed on one object. So what's an object then? Well, there are several instances of objects. An object can be a button with a label. An object can be a seek bar, a piece of printed text, or it can be an edit field with or without text in it. So it's very important to understand that, because granularity really happens inside whatever object the accessibility focus currently is on, as we will demonstrate. So without further ado, we will proceed to the actual demonstration. Firstly, we must specify something because it changed recently. It used to be that granularity would be cycled through simply by scrubbing or moving the finger in a brief gesture up and down, so that one could cycle through for instance, reading by word, reading by character. But in the latest TalkBack, which just hit the Play Store, version 3.4, this has changed, so that one now has to open the local context menu in order to do that. It should also be specified that due to many people complaining, including myself, there is now the option to bring this back by going through in TalkBack settings and under manage gesture to select to bring it back to what it once was. So if you have not upgraded yet to TalkBack 3.4, you still must scrub up and down. If you just upgraded to 3.4 and are a little bit at a loss, you must open the local context menu, as will be shown, or you must go in your TalkBack settings to change that under manage gesture. This is rather important. This is a big change. So enough of that. We will now proceed with the demonstration. And so I have my home screen here, and I do not want to do anything complicated. So I will just go to a little item here. Moon Plus Reader Pro. Moon Plus Reader Pro. Double tap to select. Which is an EPUB and PDF reader. So my focus is currently on that item. It's a shortcut that would open it if I double tapped it. That's what the focus is on right now.
So I'm daft, I don't know what Moon Plus Reader Pro is, and I want to make sure I know what this label is saying before I double tap it. And now I want to read by word. So what I'm going to do is use one of the two-part gestures, the L-shaped gesture, to open the local context menu. So I will very quickly swipe up and right, like so. Now I have the Touch context the screen and menu. explore in a circle to find an item, then lift to select. Right, so I plunk my finger down in the center of the screen, and I start moving about. Paragraph granularity. Paragraph granularity. Default granularity. Default granularity, by the way, is simply moving by object, as I described earlier. That's all it is. That's the default. Character granularity. Character granularity, of course, is moving by character. That's fairly self-explanatory. Word granularity. And same for word. Paragraph granularity. Paragraph really means carriage returns, so it will read everything that's between carriage returns. Now we want to review by word. Word granularity. Word granularity. So I will lift my finger here, Moon. and I am on the word moon. Now I start swiping right. Moon. Reader. Pro. Wonderful, I can swipe back. Pro. Reader. And forth, Reader. Pro. and back left. Pro. And I did this to show that the word is repeated when one swipes back or forth, and that is because the actual pointer moves to the beginning or end of that word. So when I move about, Pro. pro, Pro. pro, Reader. reader, now I'm at the end, I'm at the beginning of the word reader because I was moving backwards. If I wanted to swipe forward, Reader. reader again, but now the pointer is at the end. The purpose of that is, of course, that if I switch to character granularity, now it will start reading from the end of the word reader, but I could swipe again back and go to the beginning of the word reader to have that word spelled to me. In fact, that's exactly what I'm going to do. Reader. Alright, now it's time to spell out that reader to make sure that the author of that application did not make a typo. Very important and well, critical of these things. So I will swipe up and right again, and I will locate Touch the character, screen and explore in a Yeah. word granularity. character granularity, Character granularity. and I will lift my finger again, Capital R. and I am on capital R because I had moved my pointer to the beginning of the word reader. So now I can swipe. E. A. D. E. R. Space. Capital P. R. O. N. And that is the other thing that I wanted to demonstrate here, is that now I swipe forward and I can't go any further than this. I'm not moving about on the screen. I have hit the end of that particular object, the Moon Plus Reader Pro label here, shortcut, and I cannot move outside that object unless I either explore somewhere else on the screen, Keep home screen 4. GWN. or if I had shifted back to default reading granularity. Those are the only two ways. And now it's time to make a few remarks. I mean, we have covered the basics here. It is also important to know that it works exactly the same in an edit field. So right now I was simply reviewing a label, but I could have done exactly the same inside an edit field, which would have allowed me to delete or insert characters or correct mistakes. So once you understand how this works, this will not only enable you to review text anywhere on the Android platform, but also edit
texts, emails, SMS, whatever will make you happy. So a few final remarks. One is that there is currently a bug, which is that it will, if reviewing by character, it simply will not read the first character of the first word within an object. And that is because there is a little bit of an implementation problem, because the cursor should theoretically move to the left, but it cannot, because it's at the beginning. I don't know if a bug's been filed for it, but I will once I'm done recording this demonstration, because I figured out what the problem was as I was preparing for this. So currently it is impossible to review the first character of the first word, but if you are editing, it is, because the cursor is to the right of it, it is possible to backspace on it and correct it. So that's the bug. The second and important thing to know, because it can be useful and annoying both at the same time, is that if focus should move away from the current object which you are reviewing, granularity is reset to default. This means that if you're reviewing your Moon Plus Reader Pro here, and suddenly on a whim or by accident touch anywhere on the screen, Internet, you will find that granularity has been reset to default level, and you will have to change it back to whatever it was. That is the semi-bad news. The good news, however, is that TalkBack is smart enough to remember exactly where you were in the object. It seems to keep track of all objects in all open applications. I haven't tested up to how many, or whether there is a limit, but it seems to do a pretty good job of keeping track of those objects, so that when you switch back to the desired reading granularity, you will find that the review pointer is still where you left it. So this can be very useful for comparing two pieces of text, for instance. And I believe this brings us to a close of this demonstration. I hope this solved some of your problems. I'm looking forward to any comments you may have. As always, if you enjoy this and find it useful, I invite you to follow me on Twitter at smassey1, or on Google Plus, the address which will be on the outline accompanying this demonstration. Thank you for listening. Over and out. सो फ्रेंड्स, सुना होगा आपने ये वाला, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था ये, बट इट्स रियली वर्थ लिसनिंग. मुझे भी इनफैक्ट माई सेल्फ, मुझे भी ये जो ग्रेनिटी का पूरा सिस्टम है, ये ऑडियो सुनने के बाद ही समझ में आया था. That's why I thought to include it in my show also. तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग टेक्स्ट सिलेक्शन एडिटिंग में भी हम लोग यूज कर सकते हैं टॉकबैक का, और जनरेटिव के थ्रू ही ये चीज़ होगी. तो अभी जैसे कि फ्रेंड्स, ये हमने रेडियो लिखा था, मुझे ये रेडियो सेलेक्ट करना है, तो थिंग सेम. मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करूंगा अभी. यहाँ पे अब मेरे पास भी रीडिंग जनरेटिव के ऑप्शंस भी है, लाइक देखिए, और यहाँ पे कर्सर कंट्रोल में यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट का ऑप्शन भी है, सिलेक्शन मोड का भी है, अगर सिलेक्ट ऑल भी है. और ये सिलेक्शन मोड स्टार्ट करूँगा तो मैं वॉल्यूम की से सिलेक्ट कर सकता हूँ. सिलेक्ट ऑल करूँगा तो सिलेक्ट ऑल की सिलेक्ट हो गया. अब जब मैं दोबारा से ओपन करूँगा लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से, तो भी वो वहाँ पे फिर मेरे को कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन भी वहाँ पे होगा, क्योंकि मेरे पास क्लिपबोर्ड पे कुछ है. तो जब एडिट बॉक्स डबल टैप एंड होल्ड करते हैं हम लोग, तो कई बार वो
कॉपी और पेस्ट का जो ऑप्शन होता है वो हमसे छूट जाता है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। तो इस वे से सिलेक्शन करना ज़्यादा बेटर है आई थिंक। और फिर जो मैंने आपको बताया था अभी, सॉरी बताया नहीं है, अभी बताने वाला हूँ, सॉरी। तो जो बटन्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले एक बार डिस्कस किया था कि 4.3 में अनलेबल बटन्स को लेबल करने का फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फ्रेंड्स दिस वर्क्स इन द सेम वे। जो लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हमें ओपन करना होता है, जिस भी वे से या हम डिफ़ॉल्ट जेस्चर से यूज़ कर रहे हैं या फिर हम पर्टिकुलर हमारा जेस्चर अपने हिसाब से डिफाइन करके करें, उससे लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करना है और स्क्रीन पे नेविगेट स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ हमें एक ऐड लेबल बटन मिलेगा, वहाँ पे जस्ट सिंपल उस पर से फिंगर जरा सा लेफ्ट करेंगे और एडिट बॉक्स आएगा और टाइप करके ओके करना होगा और उस बटन को लेबल मिल जाएगा जो हम दे रहे हैं। और फिर लोकल कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के बारे में आपने अभी सुना ही होगा। लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू समथिंग जो पर्टिकुलर ऑप्शन जो स्पेसिफिक होती है, लाइक एडिट बॉक्स में उससे रिलेटेड ऑप्शन उसके होंगे, अगर वो होम स्क्रीन पे तो उससे रिलेटेड उसके ऑप्शन होंगे, तो जहाँ भी उसके रिलेटेड ऑप्शन होंगे। और एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी होता है जो वाइस वर्सा होता है, पूरा टॉप बैक में चलता है। आप कहीं भी उसे करो, उसके कुछ एक्शन डिफाइन है, जैसे जर्नलिटी, पॉज फीडबैक या टॉप बैक सेटिंग, जो भी वो ऑप्शन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए जब एक बार ऑप्शन हमें मिल जाता है, फिंगर जरा सा हमें लेफ्ट करना होता है और वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट नोटिफिकेशन बार, जो कि एक मेन चीज़ है मोड के लिए यूज़ करने के लिए, जो हमें बहुत बार एक्सेस करनी पड़ती है। इनफैक्ट बिना उसको एक्सेस किए भी हम लोग नहीं जान सकते कि हमारे फ़ोन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसका मैसेज है, किसका मिस कॉल है। तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बार को एक्सेस करने के लिए होता है कि आप अपने 2 फिंगर्स को नियर स्पीकर के पास में रखेंगे और अलाइन करके रखेंगे और 2 फिंगर्स को डाउन करेंगे, लाइक ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि जो भी आपके फ़ोन के जैसे कि सिग्नल कितने बार हैं, बैटरी कितना % है, मिस कॉल है, मैसेजेस कितने हैं या कोई फेसबुक की क्या अपडेट्स हैं, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और एक यहाँ पे क्विक सेटिंग्स का बटन भी होता है, जिससे कि सारे जो भी सेटिंग्स होते हैं फ़ोन के, मेन सेटिंग्स लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, ब्राइटनेस और बैटरी लेवल कितना बाकी है और किस फ़ोन पे कितना सिग्नल आ रहा है, वो सारी सेटिंग्स, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे डिटेल में अवेलेबल होती हैं। लाइक ये देखिए, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं नोटिफिकेशन शेड में। और उसके अलावा फिर थोड़ा सा टॉकबैक की सेटिंग्स मैं आपको बनाना चाहूँगा, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर कर पाऊँगा। तो टॉकबैक के अंदर कुछ सेटिंग्स होती है, लाइक आपका एक होता है रिज्यूम फ्रॉम सस्पेंड, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसे इनेबल करते हैं, वहाँ पे 2-3 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से आप इनेबल कर सकते हैं शो ऑन व्हेन लॉकिंग शोन। तो उससे क्या होता है कि जब आप आपको सस्पेंड करते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से, जो भी मैंने बताया था आपको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और उस ऑडियो में भी था, तो वहाँ पे पॉज फीडबैक करते हैं। तो वहाँ से जब अगर आप ये ऑप्शन चेक है, आपका ऑन है, तो उससे आपका टॉकबैक बिना किसी की हेल्प के इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लाइक आपको अपना फ़ोन किसी को देना पड़ता है तो टॉकबैक ज़रूरी नहीं कि वो टॉकबैक के साथ कंफर्टेबली यूज़ कर पाए। इन दैट केस ये होता है कि वो उस तरीके से आप उसे करके दे सकते हैं। और टॉकबैक के अंदर एक सेटिंग होती है कैरेक्टर एको, जिससे कि आप जो भी टाइप करते हैं वो कैरेक्टर्स को बोलता है। एक फोकस स्पीच ऑडियो होता है, अगर वो ऑन होता है तो आप जो भी फ़ोन जो लाइक कॉलिंग या कोई चल रही है आपकी, तो टॉकबैक की जो वॉल्यूम होती है वो कम हो जाती है, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो आपकी बात को सुनने में। उसके अलावा फ्रेंड्स एक्सेसिबिलिटी में ऑप्शंस होते हैं कि जब हम एक्सेसिबिलिटी इनेबल करते हैं तो ऑटो रोटेट स्क्रीन उसे अनचेक रखना चाहिए, ताकि जब भी हम अपने फ़ोन को यूज़ करें, जब भी हम अपने फ़ोन को अपने हिसाब से अपने कम्फर्ट के हिसाब से पकड़ते हैं,
तो वो इधर उधर ना हो, और इधर उधर होता है तो स्क्रीन का जो लेआउट है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उससे फीडबैक में डिफरेंस आ जाता है, लोकेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है हमारे टच से या फिर स्क्रीन के अकॉर्डिंग, तो उससे यूज़ करने में उसको प्रॉब्लम आती है। एक टॉकबैक के अंदर सेटिंग होती है ऑटोमेटिक स्क्रोल लेस, जो कि अगर ऑन होता है तो जब हम स्वाइप और स्क्रॉल करते हैं तो टॉकबैक अपने अकॉर्डिंग जिसको स्क्रॉल करता है। और एक होता है शेक टू स्टार्ट कंटिन्यूस रीडिंग। अगर ये फीचर हम लोग यूज़ करते हैं तो फ़ोन को जो हम लोग लाइक कुछ बड़ा पढ़ रहे हैं तो बार बार स्वाइप करने की बजाय थोड़ा सा हम लोग मूवमेंट करते हैं फ़ोन में तो वो रीडिंग को कंटिन्यू कर लेता है। तो इन दैट केस वो फीचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, एक सजेशन मिला था हम लोगों को थ्रू मेलिंग लिस्ट कि फ़ोन को ऑन IVR हम लोग को कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड IVR के साथ में टॉकबैक को यूज़ करने का कोई प्री डिफाइंड या कोई बेस्ट तरीका नहीं है, जो कि iOS में है इनफैक्ट, जो कि बहुत अच्छा फीचर है iOS के अच्छे फीचर्स में देखें तो टॉकबैक के साथ ऑफिशियली वो फीचर अभी सपोर्टेड नहीं है, लेकिन हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन से वो चीज़ को ले सकते हैं। एक अप साउंड डाउन करके एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू अगर हम लोग इंस्टॉल करके इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो जब भी हम अपने फ़ोन को अपने कान से दूर करते हैं तो यूजिंग द प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो स्पीकर को एक्टिवेट कर देता है, और फिर वहाँ पे स्क्रीन पे एक डायल का चेक बॉक्स होता है, उस पर क्लिक करने के बाद में हमारे स्क्रीन पे जो नंबर पैड आ जाता है, उसके बाद हम अपने कोई भी नंबर को या जैसे कि ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं वो कर सकते हैं। और एक तरीका होता है जो कि ट्रेडिशनल है, हेडफोन यूज़ करें, लेकिन हर बार वो करना पॉसिबल नहीं होता है, और कई बार थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल टाइप वे बोल सकते हो, लेकिन ट्राई टू लिसन टॉकबैक जो आपकी कॉल चल रही हो थोड़ा सा अपनी ईयर से दूर करके, और वहाँ पे अगर आप स्पीकर पे टिक कर दो और फिर स्पीकर पे आने के बाद वो टॉकबैक की स्पीड भी तेज़ हो जाती है वॉल्यूम, और फिर आप डायल की यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा डायरेक्ट वे आउट नहीं है यूज़ करने का टॉकबैक के साथ में वॉइस IVR को। और एक क्वेरी हम लोग को ब्लूटूथ कीबोर्ड के बारे में मिली थी, तो फिर एज़ फार एज माई नॉलेज जो कोई सा भी ब्लूटूथ कीबोर्ड आपके एंड्रॉयड के साथ चलना चाहिए। और जो कीबोर्ड मेरे पास में है, आई ट्राइड टू कनेक्ट विद माई एंड्रॉयड, तो मैं नहीं कर पाया उसे कनेक्ट, क्योंकि आई फाउंड आउट कि वहाँ पे थोड़े से इश्यूज थे। मतलब थोड़ा सा सर्च करने का मुझे मिला कि 4.3 एंड 4.4 में कुछ ब्लूटूथ इश्यूज भी हैं कीबोर्ड के रिलेटेड, इस वजह से शायद मेरा फ़ोन ब्लूटूथ कीबोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। बट प्रॉबेबली कोई भी कीबोर्ड ब्लूटूथ कीबोर्ड अपने फ़ोन के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। मे भी ये हो सकता है कि जिस फ़ोन में ब्लूटूथ वर्जन 4.0 हो, वो अगर कीबोर्ड की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है ब्लूटूथ की, तो मे भी वो वर्क ना करे। लेकिन दीज आर जस्ट मतलब जितना आइडिया, मेरे पास कोई श्योर आंसर नहीं है। इन फ्यूचर इफ़ आई कुड नो आई विल ट्राई टू शेयर ऑन मेलिंग लिस्ट और सो दैट हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर आप लोगों में से कोई बेटर चीज़ से जानता है या फिर कोई कीबोर्ड आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड हम लोगों को बता भी सकते हैं। और एक फ्रेंड चीज़ और आई जस्ट केम टू नो, जो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड होता है हम लोग वो भी अपने एंड्रॉयड के साथ यूज़ कर सकते हैं OTG केबल के थ्रू। तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है क्योंकि आई डोंट हैव OTG केबल विद मी, लेकिन आप लोगों के पास जिसके पास OTG केबल हो प्लीज़ डू ट्राई, अगर क्या आप अपना कीबोर्ड अपने फ़ोन के साथ यूज़ कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आफ्टर दिस टाइम इज़ रनिंग आउट, बट बिफोर आई लीव मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू फोकस ऑन जेस्चर, जो कि थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं बताया मैंने। बट तो फ्रेंड, जेस्चर समथिंग मीन अपनी स्क्रीन पे प्री डिफाइंड डिज़ाइन, प्री डिफाइंड शेप्स को बनाना। और यहाँ पे एंड्रॉयड में जो शेप्स हैं दोज आर लाइक स्वाइप डाउन एंड राइट, स्वाइप डाउन एंड लेफ्ट, स्वाइप अप एंड राइट, स्वाइप अप एंड लेफ्ट, स्वाइप up and down from one finger। तो these are like something हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से मिलते जुलते भी हैं।
लाइक स्वाइप डाउन एंड राइट आई गेस एल के जैसा होता है। तो इसी तरह से ये वाले जेस्चर्स जो होते हैं प्लीज़ हेल्प अस टू मतलब परफॉर्म द एक्शन क्विकली। लाइक आप किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप होम का जेस्चर स्क्रीन पे बनाते हो तो आप होम पे आ जाते हो डायरेक्टली। और रीडिंग जर्नलिटी जो कि सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है एंड्रॉयड में अभी तक, अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन जो 2 पार्ट वर्टिकल जेस्चर टॉकबैक की सेटिंग्स में होता है, मैनेज जेस्चर में होता है, वहाँ पे अगर सेकंड वाले ऑप्शन को जो रीडिंग जर्नलिटी का ऑप्शन होता है उसे अगर टिक कर देते हो तो 1 फिंगर राइट अप एंड डाउन, कंटिन्यूस अप एंड डाउन विदाउट लीविंग द स्क्रीन से आपकी जर्नलिटी चेंज होती है और टॉकबैक आपको अनाउंस करता है कि आप कौन सी जर्नलिटी पे रन कर रहे हो। और उसके बाद आप स्वाइप राइट और लेफ्ट से अपनी अकॉर्डिंगली आप उसको रीड कर सकते हो। अगर आप कैरेक्टर वाली जर्नलिटी यूज़ कर रहे हो तो टॉकबैक का एक बार है कि वो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेटर होता है उसे अनाउंस नहीं करता, तो इसका कोई सोल्यूशन बेसिकली नहीं है। बस आप एक बार राइट स्वाइप करके सेकंड लेटर पे आइए, फिर फर्स्ट लेटर को पढ़िए, फिर सेकंड पे जाइए, फिर शायद आपको समझ में आ सकता है कि वो एक्चुअली क्या है। लेकिन टॉकबैक का बाकी फर्स्ट लेटर वो नहीं पढ़ता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वी आर डन विद दिस शो। वैसे प्लान ये था कि वी विल हैव 2 शोज, लेकिन कवर नहीं हो पाया पूरा शो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस ऑन द नेक्स्ट वीक ऑल्सो। मीनवाइल आपको शो कैसा लगा, क्या फीडबैक देना चाहोगे आप, क्या अच्छा लगा इसमें, आपको क्या बुरा लगा और क्या इंक्लूड होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, प्लीज़ डू गिव अस फीडबैक ऑन आवर वेबसाइट that is radioudan.com or Skype is Radio Udan RADIOUDAN. So friends, don't forget to give your feedback. We need it for better shows in the future. So till then friends, I will come back next week. तब तक के लिए bye, take care.